Hello children, I am Poonam Bagga and welcome once again in your maths class. We are studying class 10th maths chapter 5 arithmetic progressions. Today we are going to start exercise 5.2 and in this video we will be taking up its first 3 questions. Before we start, let us recall what we have learnt up till now in this chapter. We know that if we keep on adding the same number again and again and again to the next coming terms, then we get a list of numbers called an arithmetic progression. And so the two basic things in an AP are its first term, which is denoted by letter small a, and the common difference denoted by letter small d. And now if we add this common difference to the first term, which we denote by a1, if we add the common difference to it, we get the second term of the AP. Similarly, if we add the common difference once again, we get the third term. And so on. By adding this common difference, we keep on getting the next terms. And so by adding this common difference, we may reach to a general term, say nth term, which is given by the expression a plus n minus 1 into d. ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी भी AP की जनरल टर्म nth टर्म इस फॉर्मूले से दी जाती है a plus n minus 1 into d. So now if I want to find the 25th term, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? a plus 25 minus 1 into d, or we can write it as a plus 24d. इसी तरह से अगर हमें 50th term लिखनी हो तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a plus 49d. 50 minus 1 is 49 and so it will be a plus 49d. तो यहाँ पर हमारे काम का जो फॉर्मूला है वो ये है कि एक जनरल nth टर्म हम लिख सकते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. नाउ इन दिस फॉर्मूला देर आर 4 क्वांटिटीज़. क्या क्या है वो 4 क्वांटिटीज़? वन इज दिस an, द nth टर्म, देन वी हैव द फर्स्ट टर्म a, देन वी हैव दिस नंबर n एंड देन वी हैव दिस कॉमन डिफरेंस d. इन 4 क्वांटिटीज़ में से कोई भी 3 क्वांटिटीज़ हमें क्वेश्चन में या तो दी होंगी या फाइंड आउट करके उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी और तब हम 4th वैल्यू जो इसमें मिसिंग होगी उसको फाइंड आउट करेंगे जस्ट बाय सिंपल कैलकुलेशंस. ओके, सो लेट अस नाउ बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 एंड कीप योर पेन एंड पेपर रेडी एंड जॉइन मी. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल given that a is the first term and d is the common difference and an is the nth term of the AP. यहाँ देखिए आप एक टेबल है. a the first term, it has been given in some cases, then we have been given the common difference in some cases. This is the value of n and this is the value of nth term. अब यहाँ आप देखिए 4 क्वांटिटीज़ हैं अभी जैसे बात की थी हमने, और इन 4 क्वांटिटीज़ में से कोई भी 3 हमें दी हुई हैं और 4th जो मिसिंग है वो फाइंड आउट करनी है. तो इन क्वेश्चंस को एक एक करके चलते हैं और वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, द nth टर्म ऑफ एन AP. ओके, द फर्स्ट पार्ट हियर लेट अस राइट फर्स्ट. a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 8 एंड वी हैव टू फाइंड द nth टर्म. सो वी नो that an is given by the formula a plus n minus 1 into d. In place of an we need to find it, so we will write it as an. a की जगह हम लिखेंगे 7, then n is 8, so 8 minus 1 and d is 3, so 8 minus 1 into 3. This will be 7 plus 7 into 3. 8 minus 1 is 7. First we will multiply and then we will add. So this will be 7 plus 21 and this is equal to 28. So the nth term here is 28 and so this blank will be filled by the number 28. This is the missing number. Next we take this part. Here first term has been given, then n has been given and an has been given and we have to find the value of d, the common difference. So again we know that an, it is equal to a plus n minus 1 into d. an की जगह हम ले लेंगे 0,
a की जगह आएगा -18 plus n is 10 here, -1 and into d. This we have to find, so we will write it as d only. Then send this -18 to the LHS. It will become 0 plus 18, or simply we write 18. This is equal to 9d. 10 minus 1 is 9d. ये 18 जो माइनस में है यहाँ आके प्लस में हो गया. 0 प्लस 18 इज 18 इटसेल्फ, और ये हो गया 9d. यहाँ से हम d कैसे निकालेंगे? 18 upon 9, this is equal to d, or we can say that d is equal to 2. 9 2s are 18. So we get the value of d here, and so the missing number here is 2. Okay. Next we take one more. Here we have to find the first term a, और हमें दिया है कॉमन डिफरेंस d, n की वैल्यू दी है और a n भी हमें दिया है. सो अगेन वी यूज द फॉर्मूला for nth term of an AP. ये जो क्वांटिटीज दी हुई हैं ये एक AP के लिए दी हुई हैं, क्वेश्चन में ही ऐसा बताया हुआ है. सो नाउ हियर वी कैन राइट AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. AN की जगह हम लिखेंगे -5. A is to be found, and then here n is 18 -1 and d is -3. Here we will mark one bracket because the value of d is negative, तो उसको हम bracket में रखेंगे. Next -5 and this is equal to a plus 17 into -3. This is equal to -5 equal to a minus 17 3s is 51. ये 51 अब LHS में आएगा, so it will be -5 plus 51 equal to a. This gives us a equal to how much? It will be 46. 51 minus 5, it is 46, and so this is the value of a. We write here a is 46. Okay. So these are very interesting and easy questions, and I hope you are enjoying along with me. Next we have this one, a, the first term, it is -18.9. The common difference d is 2.5. Here we have to find the value of n, and an is given as 3.6. Let us write the formula. An is equal to a plus n minus 1 into d. Let us write here the nth term of an AP is given by this formula. an it is 3.6, तो इसकी जगह हम लिख रहे हैं 3.6. a की जगह आएगा -18.9 plus n we have to find, so n minus 1 will be as it is, and d is 2.5. So we have placed these values in this formula. Next what? Send this 18.9 to the LHS. This will become plus 18.9, and now we will have here n minus 1 into 2.5. Okay. Add these two numbers. कैसे ऐड करेंगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ऐड करना है. I hope you know this very well. This will be 15 here, 8 and 4 12, and 1 here 22.5. So 22.5 is equal to n minus 1 into 2.5. Next what? Send this 2.5 to the LHS. It will go in the division. 22.5 upon 2.5, it is equal to n minus 1. Remove this decimal. पॉइंट के बाद दोनों ही केसेस में एक एक डिजिट है, तो हम इजीली ये डेसिमल रिमूव कर सकते हैं और हमें मिलेगा n minus 1 equal to 225 upon 25. Now we can divide by the number 5. 5 5s are 25, and here 5 4s are 20, and 5s are 25. Next, again we can cut by 5. 5 1s are and 5 9s are. This gives us n minus 1 equal to 9, or we can say n is equal to 9 plus 1, or we can say n is equal to 10. So this is the value of n, and we can write this missing number as 10 here. Okay. Next we have this one here. First term has been given 3.5, common difference is 0,
n is 105 and we have to find the nth term. So we can write here the nth term of an AP is given by an equal to a plus n minus 1 into d. An we have to find it, so we will write it as an only. A is 3.5 plus n is 105 minus 1 and d is 0. This is equal to 3.5 plus what? This will be 104 into 0 and any number multiplied by 0 is 0 itself, and so here we will have 0. This gives us the value of an as 3.5 and from here we get the missing number as 3.5. I hope it is very much clear, as it is very easy. Next we take question number 2. Choose the correct choice in the following and justify. Here we have been given one multiple choice question. We have to solve this question and check which is the right answer out of these 4 options. Okay. 30th term of the AP 10, 7, 4 and so on is what? यहाँ पर हमें एक AP दी है और जब भी क्वेश्चन में AP दिया हो तो हमारा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख लें और उसके बाद जो पूछा है वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो क्योंकि यहाँ पर AP दिया है, वी राइट द सॉल्यूशन हियर फॉर दिस AP. First term which is denoted by small a, it is 10 and the common difference, it is denoted by the letter small d. It is equal to, how we will find? It is the difference between any 2 consecutive terms and for practice we take it as a2 minus a1. आप इसको a3 माइनस a2 भी ले सकते थे, a4 माइनस a3 भी ले सकते हैं. हमेशा हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे. सो दिस गिव्स अस 7 माइनस 10 इक्वल टू -3. ये हो गया कॉमन डिफरेंस. और अब हमसे पूछा है 30th टर्म, सो वी कैन राइट इट एज a30. दिस विल बी a प्लस 30 minus 1 into d, because the formula is, since nth term an is given by a plus n minus 1 into d. इस फॉर्मूले से हम nth टर्म देते हैं और अभी हमें फाइंड आउट करनी है 30th टर्म, तो ये हो जाएगा a plus 30 minus 1 into d. Now place in the values. a is 10 plus 30 minus 1 is 29 into d is -3. This gives us 10 and plus minus will be minus 29 into 3. It is 87. This is nothing but -77. 10 minus 87, it is -77. And so now we can see that the option C is the correct option and we can write it also at the end. The correct option is C, -77. Okay. Next we have one more part of this same question. We have to find the 11th term of the AP and these are the options. We have to choose the right answer from these options. So let us begin. Here again, first we will find the first term A, which is -3. जब भी हमें AP दिया हो तो first step क्या होना चाहिए? To find the first term and to find the common difference. Okay, remember this always. And now here a is -3 and d is given as a2 minus a1. This will be equal to -1 by 2 minus -3. ये है आपकी फर्स्ट टर्म, ये है आपकी सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म. फर्स्ट टर्म को हम a से भी डिनोट करते हैं और a1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर हम d फाइंड आउट कर रहे हैं a2 माइनस a1. -1 by 2 हो गई आपकी सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म विच इज़ -3. तो 2 बार माइनस आ रहा है, एक माइनस तो फॉर्मूले का और एक माइनस ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू में ही है. नेक्स्ट हियर दिस विल बी इक्वल टू -1 by 2 प्लस 3. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6
अपॉन 2. दिस विल बी 6 माइनस 1 5 अपॉन 2. ये मिल गई हमें d की वैल्यू. लेट मी राइट इट प्रॉपरली. दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस d. ओके, now we need to find the 11th term. We know that the nth term, it is given by the formula an equal to a plus n minus 1 into d. तो 11th term हम कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली लिख सकते हैं a plus 10d. अब तक तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी डायरेक्टली लिखने की, a plus 10d. और यहाँ पर a की वैल्यू है देखिए -3 plus 10 into d is 5/2. Now since there is a multiply sign in between, we can easily cancel 2 and 10. अगर बीच में मल्टीप्लाई साइन है तो हम नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आसानी से कैंसिल कर सकते हैं सेम नंबर से. लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस है तो हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन है. सो वी कैन डिवाइड बाय 2. 2 1s and 2 5s 10. So this will give us -3 plus 5 into 5. Again first we will multiply. This gives us -3 plus 25. Now 25 minus 3, it is 22. So we can write here thus 11th term, it is 22 and the correct option is B. Let me make some space. Okay, clear? Next we take question number 3. In the following APs, find the missing terms in the boxes. So here we have been given some APs. ये बताया गया है कि ये जो list of numbers है ये एक AP फॉर्म कर रही है और अब हमें missing numbers find out करने हैं. ठीक है? So here this is the first one, 2, then missing number and then 26. तो यहाँ से हमें क्या information मिल रही है वो देखिए आप. Here we can write the first term. बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पर? इट इज़ 2. देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट टर्म तो 2 है. साथ ही साथ हमें क्या दिया है? ये नंबर 26. और ये कौन से नंबर की टर्म है? ऑब्वियसली इट इज़ द थर्ड टर्म. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये हो गई हमारी थर्ड टर्म. सो हियर वी कैन राइट A3, इट इज़ 26. ओके, लेट द कॉमन डिफरेंस बी D. इसको भी कोई नाम तो देना ही होगा पहले और वो हम दे रहे हैं स्मॉल d. देन थर्ड टर्म, इट कैन बी रिटन एज a plus 2d. 3 minus 1 यहाँ पर आएगा और वो है 2. सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज a plus 2d. और ये हो गया इक्वल टू 26 जैसा कि क्वेश्चन में दिया है. नाउ प्लेस दिस वैल्यू ऑफ a. इट इज़ 2. सो 2 plus 2d is equal to 26. Why we have placed this value? Since a is equal to 2. This gives us 2d equal to 26 minus 2. ये 2 यहाँ प्लस में है, इधर जाके माइनस हो गया. This gives us 2d equal to 24. And so d is equal to 24 upon 2 equal to 12. And from here we can easily find this missing number. d is equal to 12. Therefore, second term A2 ये कैसे मिलेगी हमें? A2 it will be A plus 1D or simply D. A is 2 and D is 12. So this will be equal to 14. From here we get the missing number as 14. Hence we have the list of numbers or the AP as 2, 14 and 26. Okay, ये हो गई हमारी AP 2, 14 and 26. यहाँ आप देखेंगे कि only 3 numbers are there in the AP and we have to find the middle term. So we can find it by one more method. और वो method क्या है? We can find it by arithmetic mean method. Arithmetic mean, I discussed it in the previous video. It is given by the sum of the first and third term upon 2. तो ये हो जाएगा 2
plus 26 upon 2. This is 28 upon 2 equal to 14. So this is another method. और ये कब एप्लीकेबल होगा? जब हमारे पास 3 नंबर्स होंगे AP में, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. अगर 3 नंबर्स हैं और मिसिंग नंबर है बीच वाला सेंटर टर्म, तो हम ये फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके 2 से डिवाइड करके इजीली सेंटर टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर. इट इज़ ऑल्सो क्लियर. यू कैन टेक एनी मेथड. ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस वन. हियर 2 टर्म्स आर मिसिंग, बट वट एवर हैज़ बीन गिवन, फर्स्ट लेट अस राइट इट. क्या क्या दिया है देखिए. एक तो हमें दिया हुआ है A2, द सेकेंड टर्म, इट इज़ 13 एंड A4 इट इज़ 3. देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म. A1 और A3 तो पूछा है और A2 और A4 हमें दिया हुआ है. तो यहीं से आगे बढ़ते हैं. लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP be small a and the common difference be small d. Then A2, this will be given by A plus 1D. देखिए आप, A plus 1D, this is equal to 13. And A4, this will be A plus how much D? Yes, 1 less than 4, and it will be A plus 3D. This is equal to 3. Here we have used a formula. Since nth term of an AP is given by AN, A plus n minus 1 into D. ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं और उसी से ये रिजल्ट हमें मिल रहा है. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस, 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स A एंड D. 2 वेरिएबल हो गए यहाँ पर, A भी और D भी. तो यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करके A और D की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए A के कोएफिशिएंट दोनों ही केस में सेम है, तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ईजिली हमें D की वैल्यू मिल जाएगी. सो व्हाट वी राइट हियर, subtracting equations, we can write here, subtracting these equations, we get A plus 1D equal to 13 and A plus 3D equal to 3. सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये बॉटम इक्वेशन में सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस से माइनस हो गए, तो A minus A it will be cancelled. 1 minus 3 it is minus 2 and D will also come, so minus 2D. और यहाँ 13 minus 3 it will be 10. This gives us D equal to 10 upon minus 2. This is equal to minus 5. तो D की वैल्यू हमें मिल गई minus 5. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A. और इसके लिए D की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दें, लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड दिस बी इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 में अगर हम D की वैल्यू रख दें तो A इजीली मिल जाएगा. सो व्हाट वी राइट हियर नाउ, वी कैन राइट हियर सब्स्टिट्यूटिंग D equal to minus 5 in equation 1, we get A plus D equal to 13. This is the first equation. This gives us A और D की जगह अब हम क्या रख रहे हैं, minus 5. This is equal to 13 और A minus 5 is equal to 13. This gives us A equal to 13 plus 5 equal to 18. Now we get the value of A as 18. So now we can write the AP which was required here. Thus the AP is, फर्स्ट टर्म देखिए 18 है तो 18 से स्टार्ट होगा और हमारा कॉमन डिफरेंस है -5, तो 5 को हम माइनस करते जाएंगे लगातार. तो 18 minus 5 it will be
13. 13 minus 5, it will be 8, and 8 minus 5, it will be 3. And from here we get the missing numbers as 18, this one was missing, then 13 was given, then this is the third term 8 and 3 was given. So 18, 13, 8 and 3. I hope it is clear. देखिए हमने क्या किया, हमें यहाँ पर दिया हुआ था सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म दिया हुआ था, तो सेकेंड टर्म से हमने एक इक्वेशन बनाई ए और डी की टर्म्स में, फोर्थ टर्म की हमने एक इक्वेशन बनाई ए और डी की टर्म्स में, इससे दो इक्वेशंस मिल गई, इनको हमने एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्ट करते हुए सॉल्व कर दिया और हमें डी की वैल्यू मिल गई -5। अब डी की वैल्यू को इन किसी भी इक्वेशन में रखने पर हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी और वो मिल गई हमें इक्वल टू 18। यहाँ से हमने ए पी की बाकी टर्म्स फाइंड आउट कर ली। कैसे, देखिए 18 थी फर्स्ट टर्म, फिर दूसरी हो गई 18 माइनस 5, दिस इज 13, फिर 13 माइनस 5, दिस इज 8, और फिर 8 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 3। इस तरह से हमने ये बाकी की टर्म्स भी फाइंड आउट कर ली। लेट मी राइट इट प्रॉपरली, दिस इज इक्वल टू 3. So this is the list of numbers which is forming an AP, and these are the missing numbers. Okay, next we take first term has been given and fourth term has been given. This is A1, A2 and A3 we have to find. So here first term, it is small a equal to 5, and फोर्थ टर्म इट इज़ 9 1/2। इसको सिंप्लीफाई करें अगर तो देखिए 2 9s are 18 प्लस 1 19, 19 अपॉन 2 ये हो गई फोर्थ टर्म। और अब हमें फाइंड आउट करनी है सेकेंड और थर्ड टर्म। लेट द कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी। इसको आपको इंट्रोड्यूस करना होगा क्वेश्चन में। लेट द कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी। देन फोर्थ टर्म इट विल बी गिवन बाय a प्लस 3d। इसी से मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 4 से एक लेस मिलेगा नंबर हमें, सो इट विल बी a प्लस 3d। और यहाँ पर ये इक्वल टू हो गया 19 अपॉन 2। हियर वी कैन राइट सिंस nth टर्म an is given by a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फॉर्मूला यूज करते हुए हमने ये इक्वेशन बनाई है, ये आपको मेंशन करना होगा। सो वी हैव रिटन इट देयर। नाउ a इज इक्वल टू 5, देखिए आप, तो यहाँ पर a की जगह 5 लिख लेते हैं। 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19 अपॉन 2। 5 यहाँ से RHS में जाएगा और माइनस हो जाएगा, 19 अपॉन 2 माइनस 5, दिस विल बी 19 माइनस ये 2 इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 5s are 10 और डिनोमिनेटर में तो 2 ही रहेगा जो डिवाइड कर रहा है। दिस गिव्स अस 3d इक्वल टू 9 अपॉन 2। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। फॉर दिस वी विल सेंड दिस 3 टू द RHS। अभी ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर ये डिवीजन में चला जाएगा। लेट मी मेक सम स्पेस। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हैं 3 को और कह रही हैं कि डिवीजन में जाएगा। हम यहाँ पर 3 को डिवीजन में ही ला रहे हैं, लेकिन क्योंकि 2 भी डिवीजन में है तो 2 के साथ तो ये मल्टीप्लाई होगा, पर ओवरऑल ये 9 को डिवाइड कर रहा है या इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। सो हियर वी कैन डिवाइड 3 1s are 3, 3 3s are 9, सो d विल बी इक्वल टू 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ common difference. Now we can easily find the middle terms a2 and a3. Let us write the AP now is first term, it is given as 5. Then we will find the second term a2, it will be a plus d, 5 plus 3/2। कैसे ऐड करेंगे, 5 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 10 प्लस 3 अपॉन 2, इट विल बी 13/2। और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है,
तो इसलिए इसको भी कन्वर्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 1 विल बी लेफ्ट, रिमाइंडर ऊपर और नीचे आएगा 2, 6 1/2. नेक्स्ट द थर्ड टर्म, इट विल बी a2 प्लस d, और सेकेंड टर्म क्या है, वी विल टेक दिस फॉर्म 13/2 प्लस d इज 3/2. दिस विल गिव अस 2 इन द डिनोमिनेटर और ऊपर हो गया 13 प्लस 3, this will be 16/2 and this is equal to 8. And then the fourth term, it will be a3 plus d, और a3 है आपका 8 और d है 3/2. Now if we multiply 8 2 is 16 plus 3/2, this is 19/2 और 9.5. यहाँ देखिए ये वैल्यू तो पहले ही दी हुई थी, हमें निकालने की ज़रूरत तो नहीं थी, बट स्टिल आई एम फाइंडिंग इट टू गेट माई आंसर इवेल्युएटेड. क्या हमने सही किया है कि नहीं? तो आप देखिए कि क्योंकि फोर्थ टर्म सही आ रही है जो क्वेश्चन में है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है. और इससे हमें मिल गया सेकेंड टर्म विच इज़ 6 1/2 एंड द थर्ड टर्म इट इज़ 8. यही थे मिसिंग नंबर्स और वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं. ठीक है, देखिए आप, यही तो मिसिंग थे, सेकेंड और थर्ड टर्म, और वो हमने पहले यहाँ पर फोर टर्म से एक इक्वेशन बनाई. फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है, उससे हमें d की वैल्यू मिल गई. फर्स्ट टर्म पता ही है, एक एक करके हमने सारी टर्म्स निकाल ली और मिडिल टर्म्स हमको मिल गई हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4. हियर अगेन वी हैव बीन गिवन फर्स्ट टर्म कितनी दी है, देखिए it is equal to -4, and then we have been given what, this is the first one, a2 a3 a4 a5 और ये है a6. a6 this is nothing but sixth term, ये हमें दी हुई है इक्वल टू 6. तो पहले हम मान लेते हैं, लेट द कॉमन डिफरेंस इट बी डी. देखिए सभी एपीज के केस में हमें ए और डी को तो लेना ही लेना है, ये बेसिक थिंग्स हैं इस एपी की. सो लेट द कॉमन डिफरेंस बी इक्वल टू डी. देन सिक्स्थ टर्म a6, इसको कैसे लिखेंगे हम, a प्लस 5d. yes, this is equal to 6. here again we can mention, since nth term of an AP an is given by a plus n minus 1 into d. इस फॉर्मूले से देते हैं हम nth टर्म को, तो उसी से हमने सिक्स्थ टर्म को लिखा है. ठीक है, नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ a, इट इज़ -4. उसको यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, a की जगह लिखेंगे -4 प्लस 5d इक्वल टू 6. अब 4 यहाँ माइनस में है, RHS में जाके ये हो जाएगा 6 प्लस 4 एंड दिस विल गिव अस 5d इक्वल टू 10, d equal to 10/5, this is equal to 2. So this gives us d equal to 2. अब हमें फर्स्ट टर्म पता है -4 है, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, इजीली हम ये मिडिल टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे करेंगे, -4 में आप 2 ऐड करिए जो कि कॉमन डिफरेंस है, तो आपको मिल जाएगा -4 + 2, दिस विल बी -2. इसमें फिर से +2 करिए, -2 + 2 इट विल बी 0. इसमें फिर से +2 करिए, 0 + 2 विल बी 2 एंड देन अगेन ऐड 2, 2 + 2 इट विल बी 4. इस तरह से, और आप चेक भी कर सकते हैं कि लास्ट टर्म हमें वही मिल रही है नहीं. +2 करेंगे 4 में तो 6 मिल जाएगा, इसका मतलब बिल्कुल सही चल रहे हैं हम. एंड वी कैन राइट इट हियर ऑल्सो, द AP formed is, first term it is -4, then -4 + 2 it will be -2, then -2 + 2 it will be 0, then 0 + 2 it will be 2, then 2 + 2 it will be 4 and then 4 + 2 equal to 6. Therefore the missing numbers are let me write them once again, -4,
then we have minus 2, place it inside a box, then we have 0 inside the box, then we have 2, then we have 4 and then 6. So these are the missing 4 terms. I hope it's very much clear and also very interesting. Next we take the fifth part. Here what has been given? Here we have been given the second term A2, this is equal to 38, and this is the first term A1, this is A2, this is A3, A4, A5 and again it is A6. Sixth term has also been given to us, A6, we denoted by A6, it is minus 22. अब यहाँ पर हमें ये मिसिंग टर्म्स पता करनी है, उसके लिए पहले हमें फर्स्ट टर्म पता करनी होगी और वो हमें यहाँ नहीं दी हुई है, तो कैसे पता करेंगे? ये जो 2 टर्म्स दी हैं इनसे हम वो nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए 2 इक्वेशंस बनाएंगे. 2 वेरिएबल्स होंगे, फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d. एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे जिससे a और d की वैल्यूज़ आ जाएंगी और फिर इजीली हम ये AP लिख सकते हैं. सो लेट अस राइट हियर, लेट द first term of AP be small a and the common difference, let it be small d. Okay, then nth term of an AP is given by which relation? I hope you have learnt it very well by this time. An equal to a plus n minus 1 into d, and this implies that which term? Second term A2, this will be a plus 2 minus 1, it will be 1 d, or we simply write it a plus d. This is given as 38. ठीक है, let this be the first equation. Then sixth term, it is given as a plus 5d. This is given as minus 22. Let this be the second equation. ठीक है, अब आप देखिए एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं. कैसे? यहाँ पर a के कोएफिशिएंट दोनों सेम है, 1 1. So we can easily subtract these equations and get one equation in the variable d here. Let us do. On subtracting, these equations, we get, यहाँ देखिए आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये वाले सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, a माइनस a कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ है 1 तो 1 माइनस 5 इट विल बी माइनस 4d, और यहाँ हमें मिलेगा 38 प्लस 22, इट विल बी 8 प्लस 2 10 एंड 1 हियर 60. देखिए आप, मैंने डायरेक्टली लिख लिया है, यहाँ पर साइन चेंज होंगे सब्ट्रैक्ट करने पर, 1 माइनस 5 इट विल बी माइनस 4 और साथ में d 38 प्लस 22 हो जाएगा साइन चेंज करने पर, सो इट विल बी 60. सो वी कैन राइट इट डायरेक्टली ऑल्सो. और अगर आपको डायरेक्टली लिखने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो आप ये दोनों इक्वेशंस फिर से लिखकर साइन चेंज करके शो कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सब्ट्रैक्ट इट डायरेक्टली ऑल्सो. यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी, बताइए क्या आनी चाहिए d की वैल्यू? d विल बी इक्वल टू 60 अपॉन माइनस 4, दिस इज इक्वल टू माइनस 15. 15 4s is 60, so we will have d as माइनस 15. अब a की वैल्यू कैसे मिलेगी? इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं, सब्सटीट्यूटिंग d equal to minus 15 in equation 1, we get, let us see, a plus 1d equal to 38. This will be equal to a plus minus 15 equal to 38. This gives us a minus 15 equal to 38.
यहाँ पर प्लस माइनस, इट विल गिव अस माइनस. दिस गिव्स अस a इक्वल टू 38 प्लस 15. ऐड करिए 8 and 5, it's 13, 1 carried, it will be 53. Now we know the first term and now we know the common difference. अब हम easily terms find out कर सकते हैं. Now a is equal to 53 and d is equal to minus 15. Therefore first term तो हमें पता ही है, it's 53. सेकेंड टर्म हमारी क्या हो जाएगी 53 प्लस माइनस 15. ठीक है, अगर हम डायरेक्टली ना लिखें, फॉर्मूला भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. व्हाट वी आर डूइंग, a2 विल बी a1 प्लस d, और a1 क्या है 53 और d क्या है माइनस 15. दिस विल बी 53 माइनस 15. This is equal to 13 minus 5, it's 8. Then here we will have 38. और आप देखेंगे कि क्वेश्चन में भी हमें ये सेकेंड टर्म 38 दी हुई है. देखिए इट इज़ 38 और फर्स्ट टर्म क्या आ रही है 53. फिर हमें फाइंड आउट करनी है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म. यहाँ से हमारा आंसर भी चेक हो गया है कि क्योंकि सेकेंड टर्म 38 आ गई है जो क्वेश्चन में दी है, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं. a3 इट विल बी a2 प्लस d, और a2 क्या है 38 और d कितना है माइनस 15. तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं माइनस 15. 8 माइनस 5 इट्स 3 एंड 3 माइनस 1 इट्स 2. 23 हो गई. फोर्थ टर्म इट विल बी थर्ड टर्म प्लस d. थर्ड टर्म आपकी है 23 और d की वैल्यू है माइनस 15. सो इट विल बी 23 माइनस 15. दिस गिव्स अस 13 माइनस 5, इट्स 8 and 8 only will be the answer. Then fifth term it will be a4 plus d. a4 आपका है 8 और d की वैल्यू है माइनस 15. This gives us माइनस 7. अब सिक्स टर्म हमें पता है पर हम फिर भी उसको फाइंड आउट करते हैं जिससे हमारा आंसर चेक हो जाएगा. Let us find it also. It will be a5 plus d. a5 है हमारे पास माइनस 7 और d है minus 15. This will be equal to minus 22, and this is given in the question. This means that we have found the values correctly, and so the missing numbers are we can write them now in the same way as they have been asked. First term it was in the box and it is 53. Then the second term is 38. Then we have 23, 8, minus 7 and then minus 22. और ये terms हमसे पूछी थी. We can place one box around them. So these are the missing terms. I hope it is clear and these were very interesting and easy questions. Practice these once again on your own. Soon we will meet again in the next video and continue this exercise. Okay then, goodbye.